बीजेएमसी हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मजदूर सेल कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और मजदूरों के लिए हर टाइम खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समर्थन करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। जो यदि सोचता है उसे कुछ मालूम नहीं है ट्रेड यूनियन का। हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं, हम लोग को मालूम है ट्रेड यूनियन क्या चीज है। यदि ट्रेड यूनियन है तो पार्टी मजबूत है, ट्रेड यूनियन नहीं तो पार्टी मजबूत नहीं। तो ट्रेड यूनियन सबसे, यदि भारतवर्ष में यदि ट्रेड यूनियन है तभी सरकार में मोदी जी है, शुभेंदु अधिकारी जी है। ट्रेड यूनियन के वजह से, सैनिक के वजह से भारतवर्ष में सैनिक को कभी अलग नहीं सोचिए जनता। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप, बीजेपी करने की सजा में घर जला दिया गया। बीजेएमसी युवा प्रेसिडेंट मनप्रीत सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ। पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार को 50,000 रुपए की सहायता। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गोइस्ता वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के झारखाली नेहरूपल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता और बूथ प्रमुख बापुन मिस्त्री और उनकी पत्नी का आरोप है कि गुज़िश्ता 22 जून की रात उनके घर को सिर्फ इसलिए आग लगा दी गई क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। बापुन मिस्त्री के मुताबिक इस घटना के बाद उनका परिवार मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर अपना ध्यान दे और हमें मदद करे। इस बीच भारतीय जनता मजदूर सेल बीजेएमसी के वेस्ट बंगाल के युवा प्रेसिडेंट मनप्रीत सिंह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। उन्होंने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया और अपनी जानिब से 50,000 रुपये की धनराशि देकर परिवार की आर्थिक सहायता की। मनप्रीत सिंह जी ने, इमरान साहब ने, एमपी महेश साहब ने और तमाम बीजेएमसी के मेंबर्स ने कहा कि भारतीय जनता मजदूर सेल हर परिस्थिति में अपने कार्यकर्ता और उनके परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। और क्या कुछ कहना है इस मामले से जुड़े तमाम लोगों का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। दादार काछे तो उनी निजेर घटनाटा बोलछिलेन আর তখন দেখলাম কি দিদির চোখে জল এসে গেল। তো আমিও আসলাম কাছে জানতে কি হলো। তো ওখানে শুনতে পারলাম কি দিদির বাড়ি পুড়ে গেছে। আর হ্যাঁ, দিদির বাড়ি পুড়ে গেছে। তো পুড়ে যাওয়ার আমরা সবাই জানি কি এর থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। যখন বাড়ি পুড়ে যায় কারুর তো কিছু একদম কিছুই থাকে না। তো অনেক কিছু পেপার থাকে, ডকুমেন্টস থাকে। আর ছেলে মেয়েদের জন্য কারুর বিয়ের জন্য, কারো ওষুধের জন্য সব কিছু জমিয়ে রাখা টাকা বলুন বা গয়না বলুন, হ্যাঁ, মা বাবারা রেখে থাকে। তো ওই সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তো আমি দাদাকে বললাম, আর আমাদের দাদা অর্ণব দা উনি এতই ইমোশনাল লোক। তো আমি দেখলাম 2 মিনিট যদি উনি আর কথা বলেন ও কেঁদে ফেলবে। তো আমি বললাম অর্ণব দাকে কি দাদা আপনি আমার উপরে ছেড়ে দিন। তো তখন আমি দিদির সঙ্গে কথা বললাম, ওর পুরো নম্বর নিলাম, ওর অ্যাড্রেস নিলাম। তো আমরা তখন ভাবলাম কি ওই পুড়ার জখমে আমি যদি দিদির মলম লাগাতে পারি, সেই জন্য আজকে দিদিকে ডাকা এখানে ডেকে আমি ওনাকে 50,000 টাকা চেক আজকে তো দিতে চাই। তো আমার নাম বাপন মিস্ত্রি। বাপুন মিস্ত্রি, কোথায় থাকেন আপনি? ঝড়খালি 4 নম্বর নেহেরু পল্লী। কি হয়েছিল ঘটনাটা? হয়েছিল বলতে গত 22 তারিখ রাত 1টা নাগাদ আমি একটা মিটিং সেরে বাড়িতে যাই। যাওয়ার পর জুন মাসের 22 তারিখ? হ্যাঁ, জুন মাসের 22 তারিখ। বাড়িতে যাওয়ার পর রাত 1:30 পৌনে 2টো নাগাদ আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমানোর পরে রাত 3টে নাগাদ তখন ঘরটা এক সাইড থেকে আগুনে দাও দাও করে জ্বলছে। তখন আমি ঘুম থেকে হঠাৎ গায়ে যখন আগুনের তাপটা লাগে, ফ্যান ঘুরছিল ঘরে, আগুনের তাপটা লাগার পরে তখন আমি ঠিক পাই, যেহেতু আমি ঘন্টাখানিকের মধ্যে আগুনটা ধরেছি। এবার ঘুম থেকে উঠে আমি লাফ দিয়ে বেরিয়ে বাইরে এসে আশেপাশে যারা বাড়িতে থাকে আর কি তাদেরকে ডাকলাম। ডাকার পরে এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছে
সেই ঘরে আর দ্বিতীয়বার ঢোকার মতন কোনো পরিস্থিতি নেই। মানে জল দিয়ে লিমানোর চেষ্টাও করেছিল, মেশিন দিয়ে যে জল দিবে, কিন্তু জল দেওয়ার পরিস্থিতি সেখানে আর নেই। মানে সেখানে আর যাওয়ার মতন কায়দা নেই। পুরো ঘরটা দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে পুরো ঘরটা ধরে গেল। এবার আমরা বাইরে থেকে, এবার ঘরে যেহেতু আমার একটা রান্নার গ্যাস ছিল, আমাদের তো তখন খেয়ালও ছিল না যে ঘরে গ্যাসটা আছে। এবার আমার বোন বাড়িতে ছিল, বোন বলছে দাদা তোর ঘরে গ্যাস আছে। তখন আমরা ওখান থেকে যারা ঘোরাঘুরি করছিল সবাইকে বললাম এখান থেকে সরে যাও, যেহেতু গ্যাসটা বাস্ট হতে পারে। বাস্ট হলে আশেপাশে পাকা ঘর দূর আছে, তাদের ঘরগুলো সমস্যা হতে পারতো। যেহেতু সবাইকে ওখান থেকে সরিয়ে দিলাম, অনেক দূরেই চলে গেলাম। যাওয়ার পরে গ্যাসটা বাস্ট হয়নি, যাই ঠাকুরে কী বা গ্যাসটা সোজাভাবে বেরিয়ে গেছে, পুরো সোজাভাবে পুরো বেরিয়ে গেছে, গ্যাসটা কোথাও বাস্ট ফাস্ট হয়নি। তারপরে রাত্রে মানে 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে পুরো পরিষ্কার হয়ে ছাই হয়ে গেল। বিজেএমসি থেকে আপনার কি সাহায্য হলো আজকে? আর মানবিদ্যা বিজেএমসি পার্টির পক্ষ থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে 50,000 টাকা দিয়ে। যেহেতু আমাদের কিছু নেই, পুরো নিঃস্ব হয়ে গেছি, যেহেতু আমাদের একটা থাকার ঘর যাতে করে আমরা বসবাস করে থাকতে পারি, তার জন্য মানবিদ ভাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। মানবিদ্যাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো, যেহেতু আমাদের পাশে এই সময় দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলতে? মুখ্যমন্ত্রীকে এই মুহূর্তে কিছু আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু তাদের কাছে তো বার্তা অবশ্যই গেছে, মানবিদ্যার তরফ থেকে হোক বা আমাদের পার্টির তরফ থেকে হোক। খবরে তো এমনি চ্যানেলে তো দেখিয়েছে, অবশ্যই তিনি দেখেছে কিনা দেখেছেন সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু দেখা উচিত। যেহেতু আমি সক্রিয়ভাবে 2018 সালের মাঝামাঝি থেকে আজ পর্যন্ত এই পার্টিটা এখনও পর্যন্ত করে আসছি, বিজেপি পার্টিটা। আমি 24 সালে আমাকে মারও দিয়েছে, মারও খেয়েছি, জামা টামা পুরো ছিঁড়ে আমি খালি গায়ে বাড়িও গেছি। হ্যাঁ, একটা মেয়ে আছে 8 বছরের। থানাতে রিপোর্টও করেছিলাম, এফআইআরও করেছিলাম, কোনো অ্যাকশান তারা নেয়নি। সেখান থেকে আমাদের পাড়াতে মোটামুটি আমরা 1-2 ছেলেই আমরা মানে পার্টিটাকে আমরা দাঁড় করে রেখেছিলাম। মানে বহুত জ্বালা যন্ত্রণা কষ্টের মধ্যে থেকে একটা জায়গায় তৈরি হয়েছে। শাসক হওয়ার পরেও যে এরকম একটা পরিস্থিতি হবে, এইটা আমি এই প্রথম লাইভে দেখছি। বা এমনও সময় গিয়েছে আমার সাথে কেউ কথা বলতো না, যেহেতু আমার স্বামী বিরোধী পার্টি করতো, কারোর সাথে না কেউ কথা বলতো না, সব আমাকে একঘরে করে দিয়েছিল। এমন একটা সময় এসেছিলো। আর ভোটের সময় আমি আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে কোনো রকম প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি বাপের বাড়িতে চলে যেতাম, আমি ওখানে থাকতে পারতাম না। তারপরে ভোটের যখন রেজাল্ট মানে যখন হয় পাস হয়ে যায়, তখন আমাদের বাড়িতে চারিদিক থেকে ঘেরাও করতো এবং হুমকিও চলতো। সেই সব অনেক কষ্ট করে আমরা এই অবধি এসেছি, বিজেপি পার্টি আমরা ছাড়িনি। दादा, आज देखा गया कि आप लोगों के पार्टी से जुड़े एक लोगों को जिनका घर जला दिया गया था, उन्हें 50,000 रुपये से जो है सहायता दिए गए मनप्रीत जी द्वारा, बीजेएमसी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बीजेएमसी जो है वो आम आदमी के लिए है, श्रमिक के लिए है, सबके पास है। और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है वो अपना ही परिवार का है। हम लोग वही सोच के काम करते हैं। एकमात्र संगठन है भारत का जो भाजपा को आगे लेके चलता है, भाजपा के साथ रहता है, भाजपा का झंडा खड़ी कर सकता है, जो बीजेएमसी। तो ये कार्यकर्ता हमारा परिवार का ही है, तो इसके पास रहना हम लोगों के लिए तो जिम्मेदारी होता है सर। थैंक यू। इमरान भाई, देखा गया कि अभी भी जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही है सरकार में आने के बाद से भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी घटना घटी पहले भी है। 15 साल से जो तृणमूल का जो गुंडा शासन था, ये 15 साल में तैयार हुआ था, वो एक दिन में तो जाएगा नहीं। उसी का नतीजा है कि हमने झड़खाली में ऐसा देखा कि उनका घर जला दिया गया। और जो लोग आज तृणमूल वाले जो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं और बोल रहे पोस्ट पोल वायलेंस के लेके हम लोगों को जिम्मेदार दिखा रहे, तो इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आज भी तृणमूल का गुंडागिरी आज भी कायम है और नतीजा आपके सामने है। ये बीजेएमसी, हम लोग बीजेपी का समर्थनकारी हैं, ट्रेड यूनियन है, और हम लोग बीजेपी को अपना परिवार मानते हैं। और बीजेपी के जितने भी लोग हैं, कहीं भी लोग हैं, अगर प्रॉब्लम में हैं तो वो हमारे बीजेएमसी के भी सदस्य हैं, परिवार का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग बीजेपी को अपना परिवार मानते हैं। बीजेपी से अलग हम लोग खुद को नहीं देखते हैं। हम लोगों का ये ट्रेड यूनियन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि बीजेपी का समर्थन में जो कोई ट्रेड यूनियन हो, तो इसीलिए हम लोगों का बीजेएमसी का हम लोग का जन्म। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग जो है सब बीजेपी कर्मी हैं। अब अगर बीजेपी कर्मी के ऊपर वो झड़खाली हो या
दार्जिलिंग हो या कहीं भी हो, हिंदुस्तान का किसी भी जगह में अगर किसी भी बीजेपी कर्मी को अगर उनके ऊपर जुल्म होता है तो ये सिर्फ बीजेपी का नहीं, हम बीजेएमसी के परिवार का भी कर्तव्य है उनके पास खड़ा होना। इसीलिए आज हम लोग खड़ा हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट अर्नब चैटर्जी जी ने हमें सिखाया है कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ कोई संगठन नहीं है, हम लोग बीजेपी का समर्थनकारी संगठन है। हम लोग बीजेपी के हर वो लोग के पास खड़े होंगे जो बीजेपी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो भी नीति आदेश लेके रास्ते में उतरेगा उसके संग बीजेएमसी और बीजेएमसी का पूरा परिवार और खास करके अर्नब चैटर्जी जी साथ हैं। थैंक यू। लगातार आप भी तमाम जो मजलूम रहते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं और मंत्री जी है, तमाम लोग हैं। देखिए, अभी हमारे बीजेएमसी के यूथ प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल मनप्रीत सिंह जी आज जिस तरह मेरी बहन, मेरे भाई के साथ बीजेपी के, आप समझ सकते हैं, वो बीजेपी के एक छोटा सा कार्यकर्ता है, समझ लीजिए एक छोटा सा कार्यकर्ता बूथ का प्रमुख है, उसका घर जल गया। हम लोग के पास खबर आया, हमारा एक महिला टीम गई थी, वहाँ पर उनको मिल के आई, दान दे के आई। उसके बाद अर्नब दा, अब जैसे मनप्रीत भाई बताएं कि आँख में पानी आ गया। भैया हमारे अर्नब चैटर्जी नेशनल प्रेसिडेंट, पूरा स्टेट चलाने के लिए हम लोग पूरा टीम बैठे हुए हैं, हम लोग को दायित्व दे के गया है। ये दायित्व जिस दिन दे के गया, ये फर्स्ट हमारे यूथ प्रेसिडेंट और हम लोग सब मिलकर ये बहन के पास हम लोग खड़ा होकर इनको आज मनप्रीत जी ने एक बहुत बड़ा वार्ता दिया है। बीजेपी में सब देश में वार्ता किया है कि ऐसे ही भारतीय जनता मजदूर सेल, ट्रेड यूनियन, चाहे वो बीजेपी के चाहे प्रमुख हो, चाहे वो जिला सभापति हो, चाहे वो मंडल हो, यदि हम लोग का कहीं भी जरूरत पड़ेगा, ये भारतीय जनता मजदूर सेल कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ खड़ी रहेगी। और एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि ये भारतवर्ष में परिवार है, बंगाल में परिवार है, समीक भट्टाचार्य ने बोला था, कब बोला था? जब इलेक्शन चल रहा था, उससे आगे, कि यही बीजेपी तृणमूल को सीपीएम का टाइम में आदमी आया था, बनाया नहीं किया था। दुर्गा माँ नहीं है, इसको अभी ऑर्डर दे दो तो 10 दुर्गा माँ बन जाएगा, लेकिन चोरों को नहीं लिया जाएगा। जो बेचारे मजबूर है, सरकार जब जिसकी होती है उसके साथ रहते हैं। तो मैं ये वार्ता देना चाहता हूं कि हम लोग इंसान के बगल में खड़े रहेंगे। हम लोग ट्रेड यूनियन किए हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब है पूरा कि सैनिक, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल है, डोम चमार सब शामिल है। हम लोग उसके साथ खड़े हैं। बीजेएमसी हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मजदूर सेल कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और मजदूरों के लिए हर टाइम खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समर्थन करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। जो यदि सोचता है उसे कुछ मालूम नहीं है ट्रेड यूनियन का। हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं, हम लोग को मालूम है ट्रेड यूनियन क्या चीज है। यदि ट्रेड यूनियन है तो पार्टी मजबूत है, ट्रेड यूनियन नहीं तो पार्टी मजबूत नहीं। तो ट्रेड यूनियन सबसे, यदि भारतवर्ष में यदि ट्रेड यूनियन है तभी सरकार में मोदी जी है, शुभेंदु अधिकारी जी है। ट्रेड यूनियन के वजह से, सैनिक के वजह से भारतवर्ष में सैनिक को कभी अलग नहीं सोचिए। जनता जनार्दन है तो पूरा देश बचा हुआ है। इसीलिए ये पूरा सुंदर काम मनप्रीत भाई ने जना दिया कि ट्रेड यूनियन में इसी तरह काम करना होगा, कंधे से कंधे मिलाकर। यूथ प्रेसिडेंट ने जिस तरह से काम किया दादा के निर्देश में,
ये हमें नहीं, पूरे देश को गर्व होना चाहिए। भारत माता की जय। दादा একটু বসুন, थोड़ा पानी लाना दे बाबू। क्या सपोर्ट देवा হলো? দেখুন, আজকে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মানবিক দিক। ভারতীয় জনতা মজদুর সেল এমন একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন যার শুধুমাত্র এই মানবিক দিক থাকবার কারণে ভারতবর্ষে 29টি রাজ্যে 4.5 কোটি সদস্যপদ নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করছে। আমি জানি না, আমি 26 বছর আমার ট্রেড ইউনিয়ন ইতিহাসে এরকম কোনো শ্রমিক সংগঠন আজও পর্যন্ত কেউ দেখতে পেয়েছেন কি না। আর সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে এরা যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক, দরদি কিংবা সক্রিয় কার্যকর্তা, আজকে কি করে হয় একটা সরকার পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরে এদের দিকে তাকাবার জন্য আজকে যারা তাকিয়েছে তারা তো সম্পূর্ণভাবে একটি ঘৃণ্য অন্যায়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রশাসন নিশ্চিতভাবে আমাদের বিশ্বাস যে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এবং আমার দিদি এবং দাদা আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে এইটুকু মানবিকভাবে সহযোগিতা, এটা কোনো দান কিংবা কোনো উল্লেখযোগ্যভাবে দেখার কিছু কারণ নেই। এরা ভালো থাকুক, এরা সমাজের মূল স্রোতে থাকুক, তার জন্যই আজকে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি মনপ্রীত সিং ভাই, তিনি তার পক্ষ থেকে মানবিক কিছু সহযোগিতা এদের উদ্দেশ্যে করলেন। থ্যাংক ইউ।